Hello everyone, welcome to my channel Sciencecave Fun Day. Today we are going to study about DNF blocks according to the syllabus of Term 2 CBSE Class 12. So let's begin, and these notes are prepared by me only, and these are absolutely based on NCERT. So after these notes, if you are jotting down the notes, and if you have learned the notes, if you have taken the screenshots, then study from these. You don't need to see NCERT. Each and every single important line is mentioned here. So let's start. What are transition metals? Transition metals are the metals which lie in the 3D, 4D, 5D, 6D transition series. In 3D it is scandium to zinc. In 4D it is yttrium to cadmium. ठीक है. And 5D it's lanthanum, hafnium, mercury. 6D it's actinoid. ठीक है. And this. Then inner transition metals are known as lanthanoids and actinoids, which are present in these series, but due to the lack of space due to lack of the space and also the different properties, they are kept at a side below the periodic table. So they are inner transition metals, that is lanthanides and actinides. Lanthanide is that start after lanthanum, and actinides are that start after actinium. Okay, so they are cerium to lutetium, thorium to this Lr. Now the most important line is zinc, cadmium and mercury of this group 12 have full D10 configuration in the ground state. N minus V1 D raised to power 10 NH2. This is the configuration of these. Now D block. What is D block? It is a transition metal. They are the transition metals. Their configuration is N minus 1. D can lie in 1 to 10, and NS that could lie in 1 or 2. 1 or 2. Their properties are very hard, very low volatility, melting point, boiling point बहुत high है, enthalpy of atomization is high, then large number of unpaired electrons. After that, two exceptional configurations we need to learn is chromium and copper. Chromium has atomic number 24. Its configuration needed is 3d4 4s2, but it gain one electron here to get half filled configuration in both. There should, if there is 10 and if there is 2, it is a full fill configuration. So the half, to attain the half fill configuration, is an exception of the configuration. As well as in copper, it is 3d9 4s2. It gain one electron, it becomes 3d10, which is a fully filled configuration, and this is half fill configuration. Next property is they exhibit the catalytic property, means they catalyze the reactions, and they have a paramagnetic behavior. Paramagnetic means unpaired electrons are there. They have high tensile strength, ductility, malleability, thermoelectric conductivity, and metallic luster, the properties a metal have. Next is enthalpy of atomization. इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज़ के लिए? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द मेटल को डिटरमाइन करने के लिए. एंड ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनमें. क्यों? ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फ़ायदा है कि बॉन्डिंग कितनी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी. जो रेडियस है वो लैंथन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका बहुत कम होता है. और जो एक्सचेंज एनर्जी होती है, जब मान लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हाई से लो में या लो से हाई में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जो एक्सचेंज होते हैं एनर्जी, वो एनर्जी स्टेट्स को स्टेबल करती है. मीन्स जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं उनके जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं वो होती है स्टेट. सो व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी स्टेट? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन एंड जेनरेट ऑर्बिटल्स, and this is referred to Hund's rule. So what we get is, if there is loss of exchange energy is more, stability will be more, and ionization will become difficult. So if exchange energy is less, stability is less, ionization will be more. If there is no loss, and let it be D6 configuration, like 5 plus 1 6, and Fe2 plus has 6, so it has 6. No loss of exchange energy means ionization energy will decrease. Okay, and manganese and Fe2 positive. You see, question is there. Manganese 1 positive, chromium 1 positive. Which is more stable?
Ionization energy become decreases from this, means it decreases, means it is easier or difficult. So the stability will be that much and no loss of exchange energy will be there. And in manganese 2 plus and iron 2 plus case, 3d5 or d6, 3d5 is more because of the half filled configuration. This is also half filled. Ionization will increase, इससे तो बढ़ी जाएगी, ठीक है. अगेन देयर विल बी नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. नाउ ये पॉइंट ना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे. जो लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल्स की होती है 2 पॉजिटिव, लोएस्ट कॉमन. एंथैल्पी फॉर एटमाइजेशन कैसे निकालते हैं? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अगर 2 मेटल्स के निकाल रहे हो. Cr Cu के लिए ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि जो Cr प्लस और Cu पॉजिटिव देखें तो वो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशंस दिखाते हैं. नेक्स्ट इज मैंगनीज है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3D सीरीज में +2 से +7. ओस्मियम ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की है जो +2 है, सिर्फ +2 और कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है. SEP होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है. Ti+4 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू +2 एंड +3. और मॉलिब्डेनम +6 में ज़्यादा स्टेबल है. टंगस्टन +6 में ज़्यादा स्टेबल है और क्रोमियम से भी ज़्यादा स्टेबल है. जो क्रोमियम 6 है ये डाइक्रोमेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर ड्राइक्रोमेट में जो क्रोमियम +6 स्टेट में है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखा. Cr+2 रिड्यूसिंग नेचर का होता है, मीन्स अगर किसी के पास D4 शेल है तो वो D3 कर देगा, ठीक है. तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है जो मेटल 2 पॉजिटिव स्टेट में होता है उसको मेटल Ma ले आता है. जैसे कॉपर के लिए ये चीज़ क्या है? पॉजिटिव, क्लियर. ऐसे मैंगनीज आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो +3 से +2 जाएगा. हाफ फिल कॉन्फिगरेशन में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. ऐसे Zn+2 कम्प्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फिगरेशन है इसकी. हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एसिड्स हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल का बहुत ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ठीक है. देन आपके पास ये मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल 1 मेटल की बात की. अब मेटल पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव की बात करेंगे. 3+ से 2+ में कम हो जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना. तो स्कैंडियम की वैल्यू बहुत कम है क्योंकि स्कैंडियम 3+ में स्टेबल होकर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करता है. नेक्स्ट इज जो फ्लोरीन की एबिलिटी है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने के लिए, वो या तो हाई लैटिस एनर्जी की वजह से है या फिर हाई बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से है. तो जो VF5 या CrF6 है इनके ये एक हायर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी. एंड जो COF3 है इट इज़ ऑल्सो स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई लैटिस एनर्जी. नेक्स्ट इज MnO3F इज नोन. Fe(X3COF3 is known and highest oxidation number TiX4, VF5, CrF6 are also known. Halides undergo hydrolysis to give oxohalides VOX3 and fluoride has instability in low oxidation state, example VX2. So copper halides are also known. फ्लोराइड्स की इंस्टेबिलिटी होती है अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाई में है तो स्टेबल. नेक्स्ट आता है Cu2 पॉजिटिव है, ये इंपॉर्टेंट है. जो कॉपर 2 पॉजिटिव है I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है. जैसे कि 2Cu2+4 I नेगेटिव था तो I नेगेटिव I2 में हो गया, जो I2 गैस एक्स्ट्रा निकली वो कंबाइन हो गई. कॉपर के कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं एक्वस सोल्यूशन में क्योंकि वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में चले जाते हैं. दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है. जैसे 2Cu पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cu2 पॉजिटिव बन गया और एक Cu बन गया. तो इन दोनों में से सबसे स्टेबल कौन होगा? ये. अगर मैं Cu+ और Cu2+ की बात करूं तो Cu2+ ज़्यादा स्टेबल होने वाला है इससे, क्योंकि जो Cu2 पॉजिटिव के लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. फिर आपकी ऑक्सोकटाइन्स की बात आती है जो कॉपर बनाता है. जैसे कि VO2 पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 VO2+ ऑक्सीडेशन 4 है, TiO+2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है. तो जो मैंगनीज के फ्लोराइड्स होते हैं MnF4 हाईएस्ट वाला है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है.
और इसका जो मेन हाईएस्ट नंबर का ऑक्साइड है वो Mn2O7 है। अगर देखो चार्ज की बात करूँ, -1 -2 से बड़ा है और प्लस और माइनस में से हमेशा माइनस बड़ा आएगा इसमें। ये ऑर्डर आपको पेपर में पूछा जा सकता है। सो MnO4 -1 नेगेटिव इज मोर देन Cr2O7 2 नेगेटिव एंड इज मोर देन VO2 पॉजिटिव। सो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज, and if there is stability of lower species then oxidizing power will be more. So these are all most oxidizing powers, they have high power. Next is formation color compounds की, how they are formed, इतना सही है बस। देखो अगर इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी में जाएगा तो एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन की, तो कुछ एनर्जी निकलेगी तो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा विजिबल रीजन की निकलेगी, मतलब हमें दिखेगी लाइट निकलती हुई, ठीक है। ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेचर ऑफ लिगेंड पे, कैसा है वो, ठीक है। और एक्वस सोल्यूशन की बात करूँ तो जो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लिगेंड्स। एक्वस में तो पानी ही होता है ना। नेक्स्ट अगर M+3 से +2 में जाऊँ तो Mn3 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं एक्वस सोल्यूशन में। पर अगर मैं Ti+2 Vi+2 V+2 और Cr2+ की बात करूँ तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं और अपने डाइल्यूट एसिड से H2 को रिड्यूस करवाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई Ti2+, V2+, Cr2+ रिलीज H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। नेक्स्ट are magnetic properties. Diamagnetic means which is repelled by electric field. Para means attracted by electric field. Ferro means strongly attracted by the electric field. Ferro is the extreme form of para, means many of the transition metals are paramagnetic, and if we heat the paramagnetic it will become ferromagnetic. Spin only formula very important, one numerical you can expect in 2 marks. Mu equals to √n+2. Its units are Bm Bohr magneton and mu is magnetic moment. Mu बढ़ेगा if unpaired electrons are more. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे ये कंपाउंड आपको दिख रहे होंगे, फेरस साइनाइड है ना, प्लैटिनम क्लोराइड है, प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड, ऐसे। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि मेटल आयन का साइज़ छोटा है, आयनिक चार्ज ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी पड़ी है डी ऑर्बिटल्स की। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जो VO2 है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एज अ कैटालिस्ट यूज़ होता है। आयरन फाइनली लिबरेटेड स्टेट में हेबर प्रोसेस में यूज़ होता है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में आपका निकल यूज़ होता है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इफेक्टिव कैटलिस्ट बनने के लिए अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेते हैं। जैसे 2I नेगेटिव है और S2O8 हैं, इन्होंने इफेक्टिव कैटलिस्ट बनने के लिए I नेगेटिव I2 में और S2O8 में SO4 में चेंज हो गया। ऐसे Fe3 + Fe2 में, I नेगेटिव I2 में, Fe2 + Fe3 में, S2O8 SO4 में, ठीक है। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ड होते हैं, मेटलिक कंडक्टिविटी होती है और केमिकली इनर्ट होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है, प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली। सो जब छोटे छोटे एटम, ये क्रिस्टल है लैटिस का, इसके अंदर मान लो हाइड्रोजन या कार्बन या नाइट्रोजन फंस गए, तो जो जैसे ये मान लो पूरा लैटिस है, इसमें किसी पार्ट में फंस गए तो उसके इंटरस्टिशियल, ठीक है, मीन्स किसी कोने में फंस जाना, ट्रैप हो जाना। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय मीन्स मेटल्स को ब्लेंड करना। एलॉयज़ हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। एलॉय होमोजीनियस भी होते हैं, मीन्स एक ही मेटल है सब में, जैसे फेरस के एलॉयज़, क्रोमियम, वनाडियम, टंक्शन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, स्टील में यूज़ होता है। अब अलग अलग यूज़ हो रहे हैं तो ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है। अगर ट्रांजिशन मेटल और नॉन ट्रांजिशन मेटल मिल के एलॉय बनाएं, एग्जाम्पल ब्रास, जैसे कॉपर का जिंक का बना है, और ब्रॉन्ज कॉपर टिन का बना है, ठीक है, ये होते हैं मिक्सचर्स ऑफ एलॉय। इसी के साथ आपका डी ब्लॉक ख़त्म। एफ ब्लॉक में आता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, हाईली एक्टिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो +3 है वो ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स की। लैंथेनम से लेकर ल्यूटिटियम तक एटॉमिक रेडियस कम होता है और आयनिक रेडियस भी कम होता है बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम जिरकोनियम और हाफनियम की बात करें तो इसका 160 है, इसका 159 है, तो रेडियस आइडेंटिकल से हैं, पास पास में ही है। थर्ड पॉइंट आता है लैंथेनम +2 में है और एलन +3 में है, दोनों प्रीडोमिनेंट स्पीशीज़ हैं, मीन्स +2 और +3 ज़्यादा कॉमन स्टेट है। अगर Ce+4 की फॉर्मेशन की बात करूं
तो ये नोबल गैस फेवर करती है बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है जो कि +4 +3 में रिवर्ट हो जाएगा। तो +4 जब +3 में रिवर्ट होगा तो 1.74 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा जो कि पानी को ईजिली ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो जो पानी को ईजिली ऑक्सीडाइज कर पाए उसको बोलते हैं गुड एनालिटिकल रिएजेंट। ठीक है, PR, ND, TB, DY ये 4 एलिमेंट है जो +4 स्टेट में ऑक्सीडाइज करते हैं सिर्फ। और EU +2 ये एक ऐसा है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो EU बन जाता है। ठीक है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने लूज़ करने पे सॉरी ये F7 स्टेट में आ जाता है। तो F7 में ये फॉर्मेशन करता है इनकी और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इतना लर्न नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। YBTB ये देखो YBTB यब जो यब है वो +14 F14 स्टेट में रिडक्टेंट का काम करता है, रिड्यूस करता है। और +4 में TB F7 मतलब हाफ फिल कॉन्फिगरेशन में ऑक्सीडेंट का काम करता है। ये भी क्वेश्चन जो हमें पहले पढ़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थ्योरी थी तो लिखनी तो है, लर्न करनी पड़ेगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या जाते हैं, जो सभी के सभी लैंथेनॉइड्स हैं वो सिल्वर वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं मेटल्स। अगर एयर के साथ हल्का सा भी कॉन्टैक्ट हो गया तो टार्निश ख़राब हो जाएंगे। हार्डनेस आती है अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो। और गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जो समारियम है SM उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है लैंथेनॉइड्स में, जैसे कि हमारे ट्रांजिशन मेटल्स में टंगस्टन का है। +3 लैंथेनॉइड्स में क्या होता है, जो कलर आते हैं सॉलिड में भी होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में भी। तो La3+ और Lu3+ में कोई कलर नहीं होता। तो लैंथेनॉइड आयन F0 टाइप और F14 टाइप में अगर F0 में है La+3 Ce+4 कोई कलर नहीं। Fe14 में Yb+2 Lu+3 कोई कलर नहीं। क्यों? ना तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और ना ही फुल फिल में आपको कलर मिलेगा। ये पैरामैग्नेटिक हैं। तो इनका यूज़ क्या है, ये एलॉय शील्ड्स प्लेट और पाइप पे बनाने में काम आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मिस मेटल, ये 95% लैंथेनॉइड और 5% आयरन से बना है। और भी कुछ है इसमें आयरन मेटल्स पॉइंट समथिंग है वो। ठीक है, ये बुलेट्स और शेल बनाने में काम आता है, लाइट फ्लिंटर्स बनाने में। ये मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय है। ठीक है, मैग्नीशियम ज़्यादा इसमें है। और Ln के लैंथेनम के ऑक्साइड्स हैं जो वो फॉस्फोरस में, टीवी स्क्रीन में और फ्लोरेसिंग सरफेस में यूज़ होते हैं। लास्ट इज एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स थोरियम से लेकर Lr तक हैं, 14 हैं टोटल। हाफ लाइफ इनकी लॉरेंसियम है जैसे 3 मिनट की है। आयनिक साइज देख लो, साइज ऑफ एटम है जो मेटल +3 आयन डिक्रीज करेगा सीरीज़ के दौरान ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट 5F 6G 7 6 तीनों की कंपेरेबल एनर्जी है ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स सिल्वर है, रिएक्टिव है, HCl सभी के साथ रिएक्ट कर सकता है, अल्कली बेस का कोई रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, कलर्ड हैं सारे के सारे ड्यू टू FF ट्रांजिशन। कंपाउंड्स बेसिक है और रेडियो एक्टिव है। एप्लीकेशंस क्या, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में। TiO पिगमेंट इंडस्ट्री और MnO2 ड्राई सेल में यूज़ होता है जिंक के साथ। AgBr आपको पता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में काम आता है। MnO4C और O42 नेगेटिव गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेसिकली सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आप देख सकते हो बिकॉज डिफ़िकल्ट तो नहीं है। लैंथेनम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो LnX3, पानी के साथ किया तो हाइड्रोक्साइड, कार्बन के साथ किया तो कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ किया तो नाइट्राइड LnN। ठीक है, S के साथ हीट करोगे तो Ln2S3 और O2 साथ करोगे तो ऑक्साइड, एसिड के साथ करोगे तो H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लो, जैसे ये RH है, रोडियम 45 है, ये सेकेंड सीरीज़ में है 5s4d में। तो करोगे क्या आपको याद रखना है नोबल गैसेस के सभी कॉन्फ़िगरेशंस 36, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये कुछ लर्न कर लो बस आप। ठीक है, 45 है तो इसके क्लोज कौन 36 में जो रह गए प्लस कर दो। 45 में 36 गए 9, तो 4d में भर दो जितने भर सकते हो और 5s में 4d 9 5s 0 हो गया। पर हम 5s को खाली नहीं करेंगे तो हमने इसको 1 दे दिया 4d 8 5s 1 हाफ फिल बना दिया। ऐसे NB 41 में 36 अगेन क्लोज आता है तो 41 36 गए 5 4d 5 5s 0 हमने स्टेबल बनाया 4d 4 5s 1। ऐसे गोल्ड 79 है, इसके पास 54 आता है तो 54 में से माइनस करो 25 4f 5d 6s।
ओस्मियम 76 ऐसे सेम है ये इसके जैसा ही। और BH जो कि 107 है, 4th सीरीज़ में है। Rn86 जो नोबल गैस है हमारी, 5F14, 6G5 और 7S2 कॉन्फ़िगरेशंस आपको लर्न रखनी है। लास्ट टॉपिक है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोनाइंस ऑफ द मेटल। सभी D ब्लॉक के मेटल्स हैं जो स्कैंडियम को छोड़कर मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि आयनिक है। Mn2O7 एक कोवलेंट है, ग्रीन ऑयल है। CrO3 V2O5 क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन +6 में आर्गन के इक्वल हो जाती है और Va+5 की भी आर्गन के, तो इनके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। तो Mn2O7 अगर इसको रिएक्ट करवाओ तो HMnO4 CrO3 H2CrO4 H2Cr2 दे सकते हैं। V2O5 एम्फोटेरिक है और VO4 3 नेगेटिव और VO2+ देता है। CrO बेसिक है, Cr2O3 एम्फोटेरिक है। और अलॉन्ग द पीरियड जो लेफ़्ट से राइट जाए तो बेसिक करेक्टर कम, एसिडिक बढ़ता है नॉन मेटल्स की तरफ। ठीक है, Ti VO CrO FeO में देखें तो बेसिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, इसका। क्लियर? So this was the last topic. Your entire chapter is covered. Potassium chromate and potassium permanganate. That topic is deleted from your syllabus, and chemical properties of lanthanol and actinol are also deleted. So we have completed successfully the chapter in 19 minutes. So if you like the video, hit the like button, share and subscribe.